Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how the market behaved today and what's the outlook. So let us start. Now what do we see? Now this is what we see. Nifty again forming an indecision candle. There was some bit of pressure here, we can see. It opened. Let me just clear it off. Yeah, it opened here, made a high of around 24,670 type, and then made a low of 24,541, and then closed it around 24,574. Now the point to notice here is that there is a rejection from both the sides. So buyers and sellers both are pretty adamant that the seller doesn't want it to go down and the buyer doesn't want it to cannot take it further up. So that is what it is. Here we can see that there is a rejection from the top and there is a rejection from the bottom, and this is the body of the candle. So this is a nowhere no candle. So upside is limited, downside is capped, so it seems that the range is pretty much specified. Now the only thing that we have here is that it is still kind of not broken its 1st of August low, or probably just trying to test it. It has not tested it. It was just around 20-25 points more than what it made today. But in all these candles of 3 to 5 days that we see, there is a rejection from top and a rejection from the bottom. So this is something which is should be something should be mindful of. Another thing to highlight here is that it is within the range. It is following the range the way it is from past 3 to 4 days. It is not broken, given a breakdown, or it's not even given a breakout. So that is what it is, and we'll have to see how it plays out. Once we analyze the other data point, we'll get to know how things can be. Again, 1 hour time frame, it is same. 1 other time frame, only thing is that the trajectory is down. So in an hourly time frame, the trajectory is down. We can see it very clearly here. I'll just draw the line for you to draw the conclusion. Okay, it is, yeah, you see, yeah. So this is the trajectory of Nifty, that is down. On the other hand, the down level seems pretty flattish, Oh, sorry, what did I do? Yeah, it's here. The lows are all matching up. So somewhere down the line, I feel that bottom is capped. Cannot speak about top because top seems already capped. So bottom is also capped. So this is the situation that we are in, and things can pan out differently tomorrow. We'll have to see how things go. This is what it is. So no conclusion, say in the same range, and tomorrow being expiry, can expect something pretty volatile. So that is all about Nifty. Let's go to Bank Nifty. Bank Nifty again gracefully has been trying to be in the range, trying to touch the range. This is what it is. तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये इस रेंज को कोशिश करके भी, मतलब ये ना ये तोड़ पा रहा है ना ये फुल्ली है. बस यही है कि ऊपर से हमने देखा ये रिजेक्शन है और नीचे से भी रिजेक्शन है. यहाँ पे ये खुला, नीचे यहाँ गया, ऊपर यहाँ गया और क्लोज यहाँ पे हुआ. तो अपने खुलने से अराउंड 30-40 पॉइंट्स का ऊपर का ये रेंज बनाया. सो दिस गैप इज दैट ऑफ अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का, 60-70 पॉइंट का ये बॉडी जो है 60-70 पॉइंट की बॉडी है. तो ये इसी रेंज के आसपास चल रहा है. और टुडे, आज तो मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, तो विल डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ एक्शंस वर टेकन एंड व्हाट ऑल. पर अभी तो हमें ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा कुछ शॉर्ट कवरिंग आया है. उसका भी हम चार्ट देखेंगे, देन विल गेट टू नो. 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेम ट्रेजेक्ट्री तो डाउन है, पर यहाँ पे एक रेंज बाउंड अफेयर लग रहा है. अगर हम 1 घंटे की बात करें तो यहाँ पे अगर इफ़ यू ड्रॉ द लाइन, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वी विल गेट टू सी कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड बिल्कुल एक बॉटम और टॉप लग रहा है. ये नीचे का लाइन हो गया और ये ऊपर का लाइन हो गया. अगर हम इसको देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज पे चल रहा है. तो यही लग रहा है मे भी अभी कि अभी के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए, ये रेंज पे ही रहेगा. और कल देखते हैं कैसा होता है. कल एक एक्सपायरी है, उसके बाद हम देखते हैं
लेट अस गो टू द वेरियस डेटा पॉइंट दैट वी ट्रैक। आज के डेटा पॉइंट में क्या दिखा हमें? आज के डेटा पॉइंट में नेगेटिव दिख रहे हैं एफआईआईज, क्योंकि उन्होंने कॉल बेचा है 13,000 का और 65,000 पुट खरीदा है। HNIs एंड प्रो उन्होंने कॉल 88,000 बेचा है और अराउंड 38,000 पुट भी बेचा है। तो ये मोरलेस हल्का बेरिश है, नॉट मच बट हल्का बेरिश है, क्योंकि पुट भी है। तो लेकिन चूंकि द क्वांटिटी ऑफ कॉल सेलिंग इज़ मोर, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है। अब रिटेल की बात करें, रिटेल ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज़ आउटराइटली पॉजिटिव। अब इस रेंज आज के लिए तो हमें यही दिख रहा है कि FII इज़ नेगेटिव, ये फ्लैट बोलूँगा मैं इसे, फ्लैट टू नेगेटिव, नथिंग मच। और यहाँ पे ये आउट एंड आउट पॉजिटिव है। ओवरऑल हमें पता है कि FII इज़ नेगेटिव। 53,000 उन्होंने कॉल बेचा है, 2.62 लाख पुट खरीदा है, तो दे आर लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल। यहाँ पे लॉन्ग पुट अगेन एंड शॉर्ट कॉल, तो ये दोनों तो आउट एंड आउट दे आर नेगेटिव। अब यहाँ पे जो रिटेल और रिटेल हैं, हमने देखा है कि वो 4.63 लाख जो है उन्होंने पुट अभी भी बेच के रखा है और 1.29 लाख कॉल लॉन्ग है, तो ये आउट एंड आउट पॉजिटिव है। तो इसमें से दीज टू आर नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। लेट्स गो टू FI इंडेक्स ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट में कुछ सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं आया है, देयर इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग ऑफ अराउंड 20,000 या, तो स्टिल शॉर्ट। FI शॉर्ट थे और अभी भी शॉर्ट है, नथिंग, नो सिग्निफिकेंट चेंज। DII नो सिग्निफिकेंट चेंज, लगभग एक ही है। देवर लॉन्ग फ्यूचर, सो वो लॉन्ग है। HNI देवर लॉन्ग फ्यूचर, दे आर एडिंग लॉन्ग्स, राइट। और रिटेल पे देवर लॉन्ग फ्यूचर्स, उन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया है अपना पोजीशन। सो FII शॉर्ट, DII लॉन्ग, HNI लॉन्ग एंड रिटेल लॉन्ग। सो DII, HNI और रिटेल के अगेंस्ट FII खड़ा है। सो दैट इज़ व्हाट इट सीम्स राइट नाउ, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। कैश एक्टिविटी की बात करें तो कैश पे अराउंड, हाँ कैश पे निफ्टी पे 100 करोड़ बेचा है, बैंक निफ्टी पे 540 करोड़, दे आर लॉन्ग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, फाइन, आज मॉनिटरी पॉलिसी के कारण उन्होंने दे वुड हैव टेकन सम पोजीशंस हियर। मिड कैप निफ्टी दे आर डाउन, और आपका यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिस इज इनसिग्निफिकेंट, 12 करोड़ 13 करोड़ इज़ नथिंग फॉर ओवरऑल पोजीशनिंग के हिसाब से देखा जाए तो। कैश की बात करें तो कैश उन्होंने बेचा है अराउंड 5,000 करोड़, दिस इज ह्यूज नंबर, यू नो, ये नंबर काफ़ी बड़ा है। ये 5,000 करोड़ ये बेचना इज़ लाइक, ओ माई गॉड, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ओवरऑल हमें सेंटीमेंट यहाँ पे मिक्स टू नेगेटिव लग रहा है, ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट मोर। अब यहाँ पे अगर हम आए तो वी विल हैव टू सी अदर फैक्टर्स एंड दे आर, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं निफ्टी मैच क्या हुआ, निफ्टी, दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर एक्चुअली, ठीक है। अब निफ्टी फ्यूचर पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट का देखें चार्ट, तो निफ्टी यहाँ तक तो हमें लग रहा था 1 अगस्त के आसपास हमें लगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। उसके बाद से अराउंड 5 अगस्त हमें यहाँ पे लग रहा है थोड़ी शॉर्टिंग हो रही है। ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जाकर के ये शॉर्टिंग हो रही है। दैट इज़ द पोजीशन दैट वी थिंक अबाउट निफ्टी। अब निफ्टी बैंक की बात भी करते हैं। निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ? निफ्टी बैंक में आज हुआ ये कि निफ्टी बैंक शुरू से ही शॉर्ट कवरिंग के मूड में था। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये देख रहे हैं हम, ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। तो लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम ऑल टू ऑल यहाँ पे देखें तो हमें ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग बिल्ड भी हुए हैं। वाई आई एम सेइंग दैट, आई विल टेल यू द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस, कि यहाँ पे तो चलो जैसे यहाँ पे ये हुआ 11 साढ़े 11 के आसपास यहाँ पे, ओके 5 अगस्त 14, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी आई है, उसके बाद ये ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है और ये प्राइस ऊपर जा रहा है। सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर हैज़ बीन सम बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हियर, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पर हाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ पे हुई है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं जल्दी से। लेट अस लुक एट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में ओके थोड़ा सा स्क्यूड है टुवर्ड्स कॉल। अगर हम कॉल की बात देखें तो निफ्टी कॉल 24,550 की कॉल अराउंड 89 रुपीज़ चल रही है, और पुट जो है दैट इज़ 62। तो कॉल की तरफ स्क्यूड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यही है कि
ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखें, देखो इट इज़ इंटरेस्टिंग। ओ वाई, हाँ ठीक है फाइन। तो 24,700 जो यहाँ पे ये 151 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा रेसिस्टेंस लग रहा है नीचे, ऊपर की तरफ। और नीचे नीचे एक्चुअली यू नो व्हाट द रिस्क इज़ दैट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर तो रेजिस्टेंस दिख गया, बट अगर हम नीचे की तरफ देखें तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग। अगर आप देखें, यू लेट्स सी 88, 59, 87, इसके आसपास कोई आ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट 128। तो 128 जो कल तक का सपोर्ट था, अभी तो एक माइनर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। नीचे की तरफ 24,400 हम एक टेक्निकली बेस मान सकते हैं, पर अगर हम 24,400 पे भी ओपन इंटरेस्ट देखें तो 65 लाख है। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट बट नॉट टू कंपेयर कि ये 122 के आसपास भी है या फिर 151 के आसपास भी है। सो एक बात होता है 24,700 इस एक्सपायरी पे नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, नीचे 24,400 के आसपास तक हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और प्रीमियम की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है ये प्रीमियम द राइटर्स ऑफ 24,550 विल बी इन ट्रबल टुमारो, ये मुझे लग रहा है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करें तो हम देख रहे हैं ये दीज आर ऑल कॉल राइटर्स। कितने सारे कॉल राइटर आ गए और पुट राइटर आसपास कोई है ही नहीं। सो देर इज़ सम बिट ऑफ रिस्क टुमारो। ये कॉल राइटर आ गए हैं और ये पुट राइटर यहाँ पे कोई है ही नहीं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। नाउ लेट अस कम टू आवर द टेक अवे ये है कि फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर जो अगस्त का फ्यूचर है दैट इज़ अप बाई 0.48%। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओ आई इज़ अप, नॉट द फ्यूचर इज़ अप, द ओ आई इज़ अप। तो वो ओ आई में अराउंड 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। सो दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम बिट शॉर्टिंग हेयर। ठीक है, अब अगर हम रेंज की बात करें तो 24,600, अब 24,600 ये बदल करके अब हमारा 24,500 हो जाएगा, उससे भी कम 24,400 हो जाएगा। 24,400, 25,000 इज़ गॉन केस। 25,000 भी डू नॉट एक्सपेक्ट 25,000 के अब वो रहेगा। एट बेस्ट 26 से 27,000, 24,700 कैन बी गुड रेसिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे ये बात करते हैं स्ट्राइक्स। अगर हम देखें तो 24,800 पे अराउंड 1.18 करोड़ कॉल राइटर हैं, उससे भी ज़्यादा कॉल राइटर हैं 24,007 पे 1.41 करोड़। अब इनमें ऐड हुआ है, अगर हम ये सारा देखें तो ये सारे कॉल एडिशंस हुए हैं, दे आर एडिंग कॉल्स। 24,600 पे 48 लाख कॉल्स ऐड हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ मैसिव कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग यहाँ पे मैसिव हुई है। और तो ये सारे तो आपको दीज आर ऑल रेजिस्टेंस एरियाज। 24,600 जो कल तक का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि एट एनी केस इन अ बेस्ट केस सिनेरियो 24,700 कैन, मतलब उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। आई डोंट थिंक सो। नाउ अगर हम पुट की बात करें तो पुट पे 24,400 पे 24,500 पे एक मैसिव पुट राइटर है जो 81 लाख का है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये सारे पुट अनवाइंड हुए हैं, तो यहाँ से पुट वाले गए हैं निफ्टी से। तो लास्टली हमारे पास 24,400 ही बचता है जहाँ पे पुट राइटर्स आए हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, 24,400 ऑन द बॉटम एंड मैक्स टू मैक्स 24,700 ऑन द टॉप इज़ द रेंज फॉर द निफ्टी। अब निफ्टी बैंक की बात करें, अब निफ्टी बैंक में क्या हुआ, हम ऑप्शन चेंज निफ्टी बैंक इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, सो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि अराउंड इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो दिख रहा है कि अगस्त के फ्यूचर में अराउंड 1.84% कॉल ओवरऑल फ्यूचर डिक्लाइन किया है। सो दैट इज़ डिक्लाइन इन फ्यूचर। सितंबर में ऐड हुआ है और अक्टूबर में ऐड हुआ है ना। दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्ली एक आध दिन लगेगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पोजिशनिंग FIs की सितंबर और अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट? वी सिंपली मेक आउट की शुरू के पहला अभी ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 25% टैरिफ और लगा देंगे। सो क्यूमुलेटिवली वो आपका क्यूमुलेटिवली, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नो या, सो क्यूमुलेटिवली वो आपका 50% हो गया है, दैट इज़ 50%। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड वांटेड टू सी दिस मोर प्रॉपरली। सो उसके बाद
कल का पहला रिएक्शन तो नेगेटिव होगा, दैट्स फॉर श्योर. हाउ डू वी फिगर आउट? वी फिगर आउट वाया SGX निफ्टी. मैं अब दिखा रहा हूँ कैसे. यहाँ पे अगर हम जाएं एंड देन वी जस्ट सिंपली से SGX निफ्टी 101 पॉइंट डाउन अभी दिखा रहा है. तो सिंगापुर निफ्टी जो है 101 पॉइंट डाउन है. अब हाउ फार दिस विल बी एब्जॉर्ब, टेल यू फ्रेंकली माई गट फीलिंग सेज दैट 24,400 तो नहीं तोड़ना चाहिए. देयर हैज़ टू बी सम बायर हु इज़ गोइंग टू कम देयर, ये मुझे लगता है. और मुझे ये भी लगता है कि दिस नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन पे क्या है कि टैरिफ 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगा. यूएस की एक टीम आएगी दैट विल कम अराउंड 25th of August. वो आकर के दे विल हैव अ डिस्कशन विद इंडियन गाइज पीपल हियर नेगोशिएटिंग कि भाई क्या, व्हाट इज़ द बेस्ट टैरिफ, व्हाट कैन बी चार्ज एंड व्हाट कैन बी डन. तो इस तरीके का जो पैटर्न है दैट वी सी वो होगा. लेकिन मुझे लगता है कि पहला डिप खरीद लेंगे यार. दैट इज़ व्हाट आई फील, माई टेक. क्योंकि nothing substantial, 0.2% of GDP is nothing much. It is not significant enough to impact India's economy or something like this. ठीक है, I can understand कि there are sectors which are vulnerable because of this decision, but not significant enough to impact India's economy. So that is what my take is all about. But there are certain more things I want to discuss. Now let's go there. Okay, now आज क्या हुआ? आज थी मॉनेटरी पॉलिसी. अब मॉनेटरी पॉलिसी में RBI had made के भाई in the last previous monetary policy we had already announced lot of measures, और उनके सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एडिशनल मेजर. तो हम अभी कोई रेट कट नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी रेट कट. ठीक है, और उनका स्टांस जो था वो न्यूट्रल था. अब मैं पहले बिफोर कमिंग टू ये स्टांस क्या होता है, आई जस्ट रीड आउट टू द स्निपेट्स फ्रॉम द RBI चेयरमैन्स पॉलिसी. तो उन्होंने कहा है कि भाई पॉलिसी रेट रिमेन्स न्यूट्रल विदाउट एनी चेंज. हेडलाइन इन्फ्लेशन को वो कह रहे हैं कि दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन. 8 महीने के निचले स्तर पे है, दैट इज़ 2.1%. और वो कह रहे हैं कि ओवरऑल GDP जो है वो दैट इज़ गोइंग टू ग्रो एट 6.5% के रेट पे, प्लस उससे ज़्यादा भी हो सकता है. दैट इज़ व्हाट इट इज़. उसके बाद अब मैं कुछ एक टर्म आपको बता रहा हूँ. SDF एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है. अब स्टैंडिंग ये क्या करता है, SDF ये करता है कि बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है, जैसे आई एम एन ICICI बैंक और HDFC बैंक एंड आई हैव गॉट 5,000 करोड़ ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी. तो वो जाकर के वो RBI के पास जमा करा देता है. RBI उसके अगेंस्ट में उनको कुछ रेट देती है, तो इंटरेस्ट रेट देती है. तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लंबा के लिए होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका एक रेट होता है. वो रेट भी सेम रखा है RBI ने, दैट इज़ SDF. अब क्या है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी. अब मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक है, उनको इमीडिएटली किसी ओवरनाइट बेसिस पे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो RBI के पास जाते हैं, एक X रेट पे उनसे लेते हैं. तो वो रेट को भी चेंज नहीं किया है. तो इनफैक्ट नो रेट हैज़ बीन चेंज. इंडिया के GDP एक्सपेक्टेशन को उन्होंने 6.5, दे हैव पेग्ड इट एट 6.5. रियल GDP Q1 FY27 प्रोजेक्टेड एट 6.6%. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फॉर Q1 FY27 के लिए इन्होंने 4.9% किया है, और CPI इन्फ्लेशन को 3.1% पे रखा है. अच्छा, अब नाउ व्हाट इज रियल एंड नॉमिनल GDP. तो वन आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टर्म्स. रियल नॉमिनल GDP में फ़र्क होता है इन्फ्लेशन का. रियल GDP डजंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देयर. तो अगर हम जैसे अगर रियल GDP को हम कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू ग्रो एट 6.5%, राइट, अगर उसमें हम आपका इन्फ्लेशन जोड़ दें ऑफ 5%, देन इट बिकम्स नॉमिनल GDP. तो 6.5 प्लस 5 इज 10.5, राइट. तो नो सॉरी 11.5. तो 11.5 का नॉमिनल GDP हो जाएगा हमारा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल. नॉमिनल GDP में हमारा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, रियल GDP में हमारा कोई इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी. अब मैं आई विल कम टू दिस टर्म हॉकिश, न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव. हॉकिश वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इन एन एडवर्स सिचुएशन जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अगर हमें RBI का मेजर काम किसी भी सेंट्रल बैंक का होता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड मैनेज इन्फ्लेशन. ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन को जब मैनेज करेंगे देन वो बोलेंगे आई एम गोइंग टू इंक्रीज द रेट. अब मैं अगर रेट इंक्रीज करूंगा तो शायद इन्फ्लेशन कम आएगा. दैट इज अ हॉकिश स्टांस.
न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे आज उन्होंने कुछ नहीं किया, नो चेंज इन रेट। और एकोमोडेटिव वो होता है कि भाई ठीक है, आई नो आने वाली सिचुएशन, आने वाला समय काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा रेट कट करूंगा, एंड दैट इज एकोमोडेटिव, आई एम एडजस्टिंग टू द सिचुएशन। सो ये तीनों टर्म के ये माने हो गए, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द मच टॉक्ड अबाउट ट्रेड डील। ट्रेड डील में क्या हो रहा है, मैं बहुत जल्दी आई जस्ट ट्राई एंड सम इन सब्सटेंस में बताऊंगा इसका क्या है। चाइना, ईयू और इंडिया, ठीक है। अब मैं स्टैटिस्टिक्स पे देखता हूँ, लेट अस नॉट गो अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग और समथिंग। क्रूड ऑयल रशिया से चाइना ने 47% लगभग एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, इंडिया 38% करता है, ईयू 2% करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑयल के फ्रंट पे इंडिया इज एट सेकंड पोजीशन। नाउ लेट अस कम टू एलएनजी जो वहाँ पे गैस होता है ना, वहाँ पे चूंकि ईयू इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन, तो वहाँ पे जाकर के काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे आपको दे यूज़ दिस गैस टू वार्म, तो वहाँ पे हीटर लगा के रखते हैं ऑल दोस थिंग्स, एंड फॉर दैट दे यूज गैस। चाइना इज अगेन हियर द बिगेस्ट इंपोर्टर, 21% ऑफ रशियन एलएनजी इंपोर्ट्स। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है, वी डू नॉट, एंड देन कम्स ईयू, दैट इज 17%, ठीक है। और टैरिफ किस पे लग रहा है, इंडिया पे, कितना, 50%। वाई, कि हम रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल और खरीदते हैं। पर इसका क्या EU, which is importing around 17% of its total LNG usage, and then at the top China, which is importing around 21% of Russia's LNG import, that on importing 47% of Russia's oil. So what about this? This is something more than what meets the eye. मुझे लगता है कि ये शायद किसी और, there might be another reason to it, to which US administration is behaving like this, but this is what is in neutral sum and substance. और मुझे ये भी लगता है कि this is not going to be implemented. I am telling you from my very very basic understanding, क्योंकि United States needs India in a Southeast Asian Pacific region to counter China. Now this is my belief, this is my observation, and I think that this is going to go, it cannot be like kicking the can down the lane. ये ऐसा नहीं हो सकता, it just cannot happen like this. तो मुझे लग रहा है कि these are some trade tactics, and second is कि there is something more than what meets the eye. We will have to see that. So this is all for today, and so what we discuss is that tomorrow can be a rough day for Nifty. वो नीचे गिरेगा, we will have to see कि वो पहला लेवल जो पहला डिप होता है वो बाई होता है कि नहीं. माई इनिशियल टेक इसकी शायद थोड़ा बाई हो जाए, बट वी विल हैव टू सी, वी कैन नॉट कंफर्म दैट. So this is what we have in for today, and see you tomorrow. Keep watching and please like and share and subscribe the video. That really gives me a lot of encouragement. Thank you all. Take care. Bye.